Hello friends, we are back with the next chapter from our prose section. The name of the topic is Big Data, Big Insights. That's chapter number 1.4 from our prose section. Children, here we don't study much about the writer. This is a analytical topic. It's a data based topic. Children, first of all, the name that they have given here, Big Data, Big Insights. Children, we will just try to understand what exactly is the meaning of this big data, and then we'll further on discuss which are the different fields which have been influenced by this big data. Children, over the years, अगर आप हमारा जो लाइफ चल रहा है उसको थोड़ा सा भी अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो वी कैन से दैट our lives they have been revolutionized by this big data. Children, here mostly data word that we have heard in our previous lectures and all, wherein we understand by the word data it's information. So big data, somewhere it stands to tell us that the quantity of the data that is collected, that's so huge that it can actually revolutionize our entire life. बच्चों, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, उसने हमारे पूरी जिंदगी को जैसे एक क्रांति होती है. There's a vast change, children, that has been brought about. Children, you talk about anything and then we have realized that over the years our life has suddenly undergone huge or vast changes. Children, you talk about the food habits कि पहले हम लोग जो खाना कंज्यूम करते थे वो और अभी हम लोग जो खाना कंज्यूम करते हैं वो. Children, you talk about the health care. There was a time when we used to depend upon certain health system which used to be backdated and outdated. Presently, children, it has changed. Our traveling patterns, they are gonna change. Acha, the scientific pursuits, the thing that we believe scientifically, they have changed. There are changes that have taken place in our beliefs, children. And the change is so huge that they say like they have changed 360 degrees. That means totally these things have undergone changes. Now, one thing, children, that you will always like to know and you will wonder is that the amount of data that is available with us. It's quite a huge data, children. So we use the word massive, and this data can actually work wonders. इंफॉर्मेशन की ताकत जो होती है बच्चों लोग, वो हम लोगों को इस टॉपिक से समझ में आएगी. आपको भी बच्चों लोग इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और ये इंफॉर्मेशन जो है या फिर बिग डेटा जिसको बोलते हैं, ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है. चिल्ड्रन, इवन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो सपोज यू जस्ट टॉक अबाउट अ नॉर्मल लाइफ, चिल्ड्रन. जैसे कि आपने कभी फेसबुक ओपन करके बैठे हो आप और आप उस पर एक आध पोस्ट लाइक करते हो, या फिर आप एक आध पोस्ट व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, या फिर किसी ने आपको भेजा था आपने बाकी लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, या फिर आप कौन से वेबसाइट्स को विजिट करते हो चलो जब आप सर्फिंग करते हो या फिर ब्राउजिंग करते हो. अच्छा, ऑनलाइन परचेसेस में आप क्या प्रीफर करते हो? जब आप गूगल पे या फिर एग्जाम्पल लाइक यूट्यूब पे जाके कौन से टाइप की वीडियोस देखते हो? यस चिल्ड्रन, आर यू अवेयर, आपको पता भी है कि आपका ये ऑनलाइन का हर एक छोटा सा छोटा एक्टिविटी रिकॉर्ड होता है. Children, it's not only recorded, it is monitored. That means someone is watching you. और आपका ये जो डेटा है चलो इसको एनालाइज किया जाता है कुछ कंक्लूजन्स निकालने के लिए, वो आपके बारे में भी हो सकता है. एंड चिल्ड्रन, द अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड इज एक्चुअली वेरी ह्यूज. वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि द डेटा कैन बी, चिल्ड्रन कैन यू जस्ट सी दिस टू वर्ड्स हियर. एक होता है पेटाबाइट्स एंड देन वी गॉट एक्साबाइट्स. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस वर्ड्स. मोस्टली लाइक हमने केबी, एमबी, जीबी, तो एंड देन टीबी वी हैव गॉट, चिल्ड्रन, एंड देन पीबी, एंड देन वी आल्सो हैव गॉट ईबी. So जैसे कि we all are aware 1024 KBs they make 1 MB. अच्छा, 1024 MBs would actually make 1 GB. 1024 GBs they make 1 terabyte. अच्छा, 1024 terabytes would actually make 1 petabyte, and 1024 petabytes would actually make a 1 exabyte, if I'm not wrong. That's the calculations that we have. That's a IT
concept of information technology. So here we mean that the amount of data, children, that's there, it can go into billions and trillions. Okay, billions and trillions of records of million of people. और ये जो लोग होते हैं बच्चों, जहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है, दे कुड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. और देखो बच्चों, ये जो डेटा आता है वो कहां से आता है? तो ये वेबसाइट्स पे से कलेक्ट किया जाता है बच्चों लोग, ये सेल्स में से कलेक्ट होता है. अच्छा, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर्स, जहां पे कस्टमर्स कॉन्टैक्ट करते हैं. सोशल मीडिया हो सकता है चिल्ड्रन, इट कुड बी अ फेसबुक, इट कुड बी व्हाट्सएप, फिर इट कुड बी समथिंग लाइक ट्विटर. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, इट कुड बी इंस्टाग्राम. एंड a lot of data, children, even robbed from your mobile phones and so on. So next time children, every time जब आप बैकअप मारोगे अपना डेटा गूगल ड्राइव पे या फिर उस ड्राइव पे स्टोर करते हो, क्या पता बच्चों लोग कि आपका डेटा किसके हाथों में अवेलेबल होता है. जब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, या फिर एग्जाम्पल के लाइक दे इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक योर आईज का भी फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कैनिंग किया जाता है. ये सब डेटा कहीं पे स्टोर किया जाता है. एंड सी चिल्ड्रन, प्रेजेंटली ऐसे माना जाता है कि लाइक इंफॉर्मेशन इज पावर. इफ यू हैव कम अक्रॉस वन साउथ का मूवी विच टॉक्स अबाउट दिस डेटा. ये डेटा बच्चों लोग प्रेजेंटली इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट्स अवेलेबल टू द इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज के पास बच्चों लोग जो डेटा अवेलेबल है या फिर कंपनीज के पास जो डेटा अवेलेबल होता है, इट्स इंक्रीजिंग और ये बढ़ते जा रहा है बच्चों लोग, वॉल्यूम में बढ़ते जा रहा है. अच्छा चिल्ड्रन, वॉल्यूम इज लाइक फॉर एग्जांपल द क्वांटिटी, वेरिएशन, वैरायटी ऑफ डेटा इज बीइंग अवेलेबल. उतना है ना चिल्ड्रन, द स्पीड विथ विच दिस डेटा इज बीइंग कलेक्टेड इट्स आल्सो वेरी हाई. वेरासिटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, कंफर्मिंग, एंड वैल्यू, हाई वैल्यूड डेटा इज बीइंग कलेक्टेड. लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन दैट कि सच अ बिग डेटा, इतना सारा इंफॉर्मेशन है बच्चों जो पीटाबाइट्स और एक्साबाइट्स में जाता है. तो सवाल ये आता है कि लाइक आज का जो हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, हाँ, तो दिस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट्स. इनसाइट इज लाइक चिल्ड्रन इंटरप्रेटिंग द डेटा, अंडरस्टैंडिंग द डेटा दैट वर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल. एक टाइम था बच्चों लोग जब इतना सारा डेटा एनालाइज करना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना शायद पॉसिबल नहीं था. लेकिन करंटली हमारे पास जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज है उसमें हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स का एक नया फील्ड डेवलप हुआ है बच्चों लोग, जहां पे ये डेटा जो पहले इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब चिल्ड्रन यू कुडंट अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लिकेटेड डेटा, बट प्रेजेंटली ऑल दिस थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल. एंड दैट बिग डेटा एनालिटिक्स चिल्ड्रन होता क्या है, तो उसका एक डेफिनेशन दिया उन्होंने यहाँ पे. इट्स अ कॉम्प्लेक्स process children of examining that large varied data sets they call it as, क्योंकि it will come into different categories and they uncover information. बच्चों लोग, ये आपका जो डेटा, कस्टमर्स का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है लोगों का, ये सब के अंदर से फिर क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं. इससे हम लोगों को बच्चों लोग बहुत सारे हिडन पैटर्न्स पता चल सकते हैं लोगों के बारे में. अच्छा, पैटर्न कुड बी लाइक चिल्ड्रन, व्हाट्स अ पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है. अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन अननोन कोरिलेशन, एकाध फील्ड का डेटा बच्चों लोग किसी दूसरे फील्ड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है. इट कुड बी रिलेटेड, मार्केट के ट्रेंड्स क्या होते हैं बच्चों लोग, इवन दैट इज बीइंग अंडरस्टूड, एंड व्हाट आर द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. नाउ सी चिल्ड्रन, द डेटा दैट इज बीइंग अवेलेबल, इंडस्ट्रीज के पास जितना भी डेटा अवेलेबल होता है, तो दिस डेटा कुड एक्चुअली हैव इन्यूमरेबल एडवांटेज. बहुत फायदा हो सकता है इंडस्ट्रीज के लिए. एंड सी मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, आजकल के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है बच्चों लोग, ये क्या कर रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू रीप, दे जस्ट ट्राइंग टू ऑब्टेन व्हाट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट. इन फैक्ट आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ऐसे बच्चों लोग जिन्होंने इतना सारा डेटा जो था उसको यूटिलाइज करके, मतलब खुद को कॉम्पिटिटर से आगे लेके गए. दैट मीन्स दे हैव एडवांस्ड फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स. सी चिल्ड्रन, अगर मार्केट में दो अलग अलग कंपनीज हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि लाइक वही कंपनी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा. चिल्ड्रन, हैव यू एवर थॉट कि लाइक मैंने एक कार का इंश्योरेंस निकाला है, जैसे वो इंश्योरेंस खत्म होने को आता है मुझे 10 इंश्योरेंस कंपनीज का व्हाट्सएप आता है बच्चों, ईमेल्स आता है कि आपका
इंश्योरेंस जो है वो मैच्योर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लाइक एक्सपायर होगा, आपको दूसरा पॉलिसी हम लोग ऑफर कर रहे करके. Children, every time you open your email, every time you open your WhatsApp, there could be some messages which are coming from the sources which are not known to you. आपको पता भी नहीं होता बच्चों कि इनके पास आपका इंफॉर्मेशन कैसे गया. तो that's children the strength of data. ठीक है. सो तो चलो अभी सवाल ये आता है कि लाइक कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज इस डेटा के साथ करते क्या है. For example, like it's not the amount of data that is important, but what is important is like what the organizations do with this data. Clear? Now, children, in this chapter we'll be talking about uses of this big data कि फायदा क्या क्या होता है. तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि दिस इज a bit lengthy lesson. We might cut it into 2 different lectures. So today's lectures we'll see a certain points जहाँ पे big data को use करते हैं हम लोग. Children, the first use that they are given here, that's a location tracking. अभी जैसे location tracking ये word आता है तो children you come across 2 different words. You either talk about the GPS, that is a global positioning system, or secondly children it's like the Google Maps. Children, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक आध पर्टिकुलर प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि आप दुनिया के किस कोने में हो, आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो. एंड एवरी टाइम चिल्ड्रन आप जब मोबाइल पे अपने कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो आप सबको पता है कि आपको बहुत सारे परमिशंस देने पड़ते. एक आध बच्चों आप ऐप डाउनलोड करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस मांगेगा, आपका जोग्राफिकल लोकेशन पूछेगा. तो चिल्ड्रन डोंट यू थिंक कि लाइक कोई ए भी देख रहा है कि लाइक आप किस वक्त कौन से जगह पे हो, बस आपको ये पता नहीं है कि कहीं से बिग बॉस आपको देख रहा है बच्चों. बिग बॉस कोई और नहीं होता बच्चों. दिस इज द बिग डेटा दैट इज अवेलेबल. सो सपोज विद दैट जोग्राफिकल पोजिशनिंग, मतलब जोग्राफिकल पोजिशनिंग के साथ में सपोज फॉर एग्जाम्पल कि लाइक या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं बच्चों जो बेसिकली मोबाइल्स में अगर हम लोग यूज करते हैं, अच्छा दे आर द सेंसर्स, और ये हम लोग को रियल टाइम डेटा दे सकते हैं ट्रैफिक के बारे में, कहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, जाम हुआ है, या फिर पर्टिकुलर रूट पे ट्रैफिक का पोजीशन क्या है, अच्छा कौन सा रूट बंद है या फिर कौन सा रूट वन वे है. एंड सी चिल्ड्रन कि लाइक वी कैन इवन अंडरस्टैंड दो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज. और गूगल तो पता है बच्चों लोग कि लाइक ये सब इतना आगे जा चुका है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. प्रेजेंटली चिल्ड्रन ऐसे भी हुआ था कि लाइक वुमेन के सिक्योरिटी के लिए सिंपली फॉर एग्जांपल लाइक कौन से स्ट्रीट्स पे लाइट अवेलेबल है ये भी आपको गूगल मैप से पता चलेगा. बीच में तो एक बार ऐसे भी हुआ था कि एक आदमी ने अपने पास बहुत सारे मोबाइल्स रख दिए थे, सबका मैप ऑन करके रखा था और एक जगह पे उसने ट्रैफिक क्रिएट करके दिखाया कि लाइक किसी कोई अगर देखता था वो रोड पे तो वहां पे ट्रैफिक दिखता था. रीजन इट वाज समथिंग लाइक अ मैनिपुलेशन ऑफ दिस ट्रैफिक कंजेशन. So children, here that location tracking is available. Children, whenever we see कि like हम लोग जब देखते हैं कि like हाँ हम लोग को गूगल मैप पे दिखा कि like यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ है, तो what do we understand children कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना गूगल मैप ओपन करके रखा है, वो भी वहाँ से ट्रैवल करे, तो उनके पोजिशनिंग की वजह से कि एक ही जगह पे बहुत सारे जीपीएस लोकेशन ट्रेस होते हैं, सेंस होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंजेशन दिखाई देता है. Children, that's the simplest method that we analyze here. Now the question arises कि ये मतलब जैसे ही हम लोग गूगल मैप देखते हैं तो हम लोग अपना रूट प्लान कर सकते हैं. अच्छा वी कैन सेव ऑन अ टाइम. एंड सी चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंटली वी कैन ऑल्सो हैंडल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द सेंस कि लाइक बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं बच्चों लोग, एरोप्लेन्स वगैरह हो सकते हैं, फिर आपका लॉजिस्टिक्स का कंपनी जहाँ पे आप हजारों लाखों के गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो और आपने वहाँ पे जीपीएस बिठाया हुआ है उस गाड़ी में, तो चिल्ड्रन लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, गुड्स का सेफ्टी भी देख सकते हैं. अच्छा गुड्स को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड. अच्छा अगर आपने कोई कमोडिटी ऑनलाइन ट्रैक की है तो आप उसको लोकेशन ट्रैक कर सकते हो. यस कहाँ पे है, आपको कब मिल जाएगा, डिलीवरी कब होने वाला है, कौन से गोडाउन से निकला है, दे गिव एवरी डिटेल चिल्ड्रन टू यू. यू कैन इवन ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स कि गुड्स को कुछ डैमेज वगैरह हुआ है क्या. ऐसे ज्यादातर जो लॉजिस्टिक कंपनीज होते हैं चिल्ड्रन जो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करा के देते हैं, उन लोगों का जो रिस्क था ट्रांसपोर्ट का वो अभी बहुत कम हो गया है. अच्छा स्पीड इंप्रूव हो चुका है. एंड सी चिल्ड्रन वी कैन बी रिलायबल अबाउट द डिलीवरी. मतलब अगर वो लोग आपको बोल रहे हैं
कि एक दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर पे होम डिलीवर होगा, तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। नहीं तो फिर अपना जो इंडिया का पोस्टल सिस्टम था, देयर वाज टाइम जब आपको बोला जाता कि लाइक 3 days लगते, लेकिन फिर एक आध हफ्ता भी लगता था। प्रेजेंटली चिल्ड्रन, इट्स बिकम सो सिस्टमैटिक दैट दे कैन टेल यू इन एडवांस व्हेन द गुड्स आर गोइंग टू रीच यू। तो ऑब्वियसली इसके पीछे होता है बहुत सारा डेटा जो कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था लोकेशन ट्रैकिंग का यूज। सेकेंडली चिल्ड्रन, वी अंडरस्टैंड द वेदर पैटर्न्स। वेदर दैट इज अ क्लाइमेट, उसका पैटर्न समझने के लिए हमने बच्चों अलग अलग जगह पे वेदर के सेंसर्स या फिर सैटेलाइट जो होते हैं, वी हैव सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब। दुनिया भर में बहुत सारे सैटेलाइट सेटअप किए गए। चिल्ड्रन, देयर कुड बी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ क्लाइमेट। अब ये बहुत सारा डेटा जो अवेलेबल होता है बच्चों, विच आर रिसीव्ड फ्रॉम देम, सैटेलाइट से और सेंसर से जितना डेटा मिलता है उसको हम लोग कंटिन्यूसली चिल्ड्रन प्रोसेस करते रहते हैं। एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर विद द हेल्प ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। अभी रिसेंटली बात थी बच्चों, जब निसर्ग करके एक वेदर, तो उन्होंने एक लिंक दिया था windy.com करके, तो उस पर अगर आप क्लिक करते थे तो आपको रियल टाइम में दिखाई देगा कि वो स्टॉर्म या फिर वो साइक्लोन कहाँ पे पहुंच गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कैसे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को वो अफेक्ट करने वाला था, मुंबई पे कितने बजे पहुंचेगा, फॉर एग्जाम्पल के लाइक अपना जो कोंकण एरिया है उसके कोस्ट पे कब आएगा, अलीबाग पे कब पहुंचेगा, ऑल दोस थिंग्स वर फोरकास्टेड इन एडवांस। और आपने एक बात नोटिस की रहेगी, फॉर द फर्स्ट टाइम ये फोरकास्टिंग या फिर मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्टिंग था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। अच्छा, see children, they can give us some warnings regarding some impending and natural calamities. Impending means children about to happen, आने वाला। अच्छा, जैसे कि क्या हो सकता है चलो, फ्लड्स आ सकते हैं, earthquakes, I suppose कि like they have made that much of improvement क्योंकि earthquakes अभी भी फोरकास्ट नहीं होते हैं। अच्छा, कोई सुनामीज आने वाला है तो अच्छा, नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट देम, जैसे कि लोगों को इवैक्यूएट करना है वहां पे, फॉर एग्जांपल कि लाइक हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टीम्स होते हैं, हाँ, उनको वहां पे तैनात करा देते हैं। एंड सी चिल्ड्रन, आगे जाके बड़े भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो लोग बोलते हैं ना कि लाइक हर साल क्लाइमेट का इतना इतना इंक्रीज होते जा रहा है, कार्बन लेवल्स इतने हैं, तो कितने सालों में ये पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा एंड द एंटायर अर्थ विल बी फ्लडेड। एंड सी चिल्ड्रन कि वी कैन इवन आगे जाके कितना पानी या फिर कितने नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, कितने सालों तक टिकेंगे, पेट्रोल विल लास्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स, कोल कितने साल तक रहेगा। चिल्ड्रन, ऑल दिस डेटा इज बीइंग एनालाइज्ड हियर। क्लियर? सो वेदर पैटर्न्स के लिए बिग डेटा को यूज किया जाता है चिल्ड्रन। देन वी कम अक्रॉस द हेल्थ इंडस्ट्री। चिल्ड्रन, हियर द हेल्थ इंडस्ट्री, व्हेन वी मेक यूज ऑफ इट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वी कॉल इट एट। अच्छा, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए सब लोग। प्रेजेंटली चिल्ड्रन, ये जो हम लोग कोविड-19 का सिनारियो देख रहे हैं उसमें तो आपने एक बात नोटिस की रहेगी, पीपल हैव बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो वी कम अक्रॉस पीपल हु यूज द स्मार्ट वॉचेस जो उनके हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा वेरेबल्स होते हैं बच्चे लोग। अच्छा, बहुत सारे हेल्थ ऐप्स आते हैं जो हमारे फ़ोन पे ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग, एंड दे हैव बीन कलेक्टिंग डेटा रिलेटिंग आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा डेटा इनके पास अवेलेबल होता है। अच्छा, ये होते क्या है, एक टाइप के बच्चों दे आर मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस, इन द सेंस कि लाइक चिल्ड्रन, अगर आपको अपना पल्स रेट देखना है तो हम लोग, अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्ट वॉच रहेगा तो उस पर भी हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। चिल्ड्रन, क्या क्या फायदा हो सकता है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का, आप अपना हार्ट रेट देख सकते हो इस पे, यस, यू कैन इवन मॉनिटर अ पेशेंट्स स्लीप पैटर्न। अगर आप एक स्मार्ट वॉच पहन के सो जाओगे तो आपका स्लीप पैटर्न क्या था, जब आप सो रहे थे तो आपका शुगर लेवल्स क्या था, या फिर एग्जाम्पल आपका पल्स रेट क्या था, आपका हार्ट बीट क्या था। इवन लाइक चिल्ड्रन, आप जो एक्सरसाइज करते हो, आप दिन भर कितने स्टेप्स आपने वॉक किया हुआ है या फिर कितना डिस्टेंस आपने टोटल कवर किया है, बच्चों ये सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है। और दिस डेटा दैट इज बीइंग कलेक्टेड चिल्ड्रन, दे कैन गिव न्यू इनसाइट्स। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल लाइक दे कैन लुक इनटू अ पर्सन सिस्टम, और ये बहुत पर्सनलाइज हो सकता है चिल्ड्रन, और हर एक व्यक्ति को हम लोग एक पर्सनल फीडबैक भी दे सकते हैं टू एवरी पर्सन। चिल्ड्रन, आजकल हमारे पास पहले फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ब्लड शुगर लेवल देखना है डॉक्टर पर जाना पड़ता था, ब्लड प्रेशर चेक करना है डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। आज पे चलो आप घर पे बैठे बैठे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं, तो थोड़ा भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वी कैन इवन गो टू सम मेडिकेशन से, फिर फॉर एग्जाम्पल सम प्रिवेंटिव मेजर्स।
दैट मीन चिल्ड्रन वो चीजें जो पहले हम लोग को हॉस्पिटल्स में मिलती थी, नाउ दे हैव कम टू आवर हैंड्स. नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, अगर एक डॉक्टर्स के पास एक बिग डेटा जो अवेलेबल होता है, दे कैन डायग्नोज एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. किसी पेशेंट को कोई बीमारी है बच्चों लोग, तो डेटा से अवेलेबल होती है. किसी डॉक्टर के पास जाओ बच्चों लोग, वो डॉक्टर आपका मोबाइल नंबर डाल देगा ना, तो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री आ जाता है, कौन से टाइम पे आपने कौन से मेडिसिन लिए आपका. या फिर फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट गो टू सम होम्योपैथिक डॉक्टर, वो आपको पता है एक आध दो सिटिंग होते हैं, उसके साथ 3 घंटा या फिर 4 घंटे तक वो आपका पूरा हिस्ट्री जानता है. तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बच्चों लोग, वो आपको एक इनसाइट देता है कि आपका बीमारी का रीजन क्या हो सकता है, एंड देन दे ट्राई टू क्योर दैट रूट कॉज. अच्छा, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो पहले गैस वर्क करते थे वो अभी कम हो चुका है. अरे मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो गया रहेगा, या फिर एग्जाम्पल मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाँ इट माइट बी दैट माई ब्लड प्रेशर इज हाई, या फिर माई शुगर लेवल इज डाउन. ये जो गैस वर्क करती थी वो अभी कम हो चुका है. फटाक से फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिवाइस है, आप अपना शुगर लेवल देख सकते हो. आपके पास एक डिवाइस है चलो आप अपना ब्लड प्रेशर खुद ही चेक कर सकते हो. ठीक है. एंड नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, आपका पास का जितना भी रिकॉर्ड्स होता है उसको हम लोग मेंटेन तो कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं. एंड सी के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके हेल्थ का जो कंक्लूजन है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ पे. एंड सी चिल्ड्रन, जैसे कि अगर कोई एपिडेमिक आता है, सडन एपिडेमिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महामारी बोलते हैं, जैसे कोविड-19, इसको हमने पैंडेमिक बोला हुआ है. हाँ, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे कि आजकल अगर आप सोशल मीडिया में अगर आपने नोटिस किया रहेगा, अगर आप व्हाट्सएप पे आपने अपना स्टेटस रखा है कि आई एम डाउन विथ फ्लू. ओके, तो चलो पहले एक टाइम था जब लोगों को थोड़ा सा भी बीमारी लगता था, लोग फटाक से उसको फेसबुक या फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप के जरिए सबको बताते थे. आज अभी फॉर एग्जाम्पल जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, आज अगर कोई अपना व्हाट्सएप स्टेटस रख सकता है ऐसे, गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉफ एंड हाई फीवर, क्योंकि उनको पता है एक एम्बुलेंस आएगा और उठा के लेके जाएगा उन लोगों को करके. तो अगर किसी जगह पे किसी ने मैसेज डाला कि ही इज डाउन विथ फ्लू, तो फिर बच्चों हम लोग को एक आइडिया आ सकता है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं हम लोग. एंड नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइक वहां पे फ्लू के पेशेंट्स मिल सकते हैं करके, राइट. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु करके एक ऐप लॉन्च किया गया, उससे बच्चों वी आर जस्ट मॉनिटरिंग द पेशेंट्स विच आर अराउंड. आप बच्चों उस ऐप पे लॉग इन करोगे तो आप मतलब 500 मीटर्स के डिस्टेंस में कितने कोविड पेशेंट्स है, कितने लोगों ने खुद को आरोग्य सेतु ऐप पे लॉग इन किया हुआ है, अच्छा कितने लोग सिक फील करे, ऑल द डेटा कैन बी एनालाइज एंड चिल्ड्रन मॉनिटर्ड. अच्छा, तो वी कैन मॉनिटर दोस एरियाज व्हिच आर अफेक्टेड बाय द फ्लू एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन. एंड नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, कि ये जो डेटा होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी चिल्ड्रन, ये बहुत सारा पैसा, और ध्यान रखना बच्चों कहीं पे भी डेटा फ्री में नहीं आता है, दे पे अ ह्यूज अमाउंट. तो नेक्स्ट टाइम बच्चों जब किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अगर आपको कॉल किया है या फिर किसी इंश्योरेंस वाले ने आपको कॉल किया है, तो यू कैन वेल इन एडवांस टेल योरसेल्फ कि शायद आपके मोबाइल कंपनी ने उनको आपका नंबर दे दिया रहेगा. या फिर चिल्ड्रन अगर आप बीमार थे, आपको डायबिटीज था, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए और किसी मेडिक्लेम के लिए किसी हेल्थ इंश्योरेंस वाले का फोन आ गया, समझ जाने का कि किसी ने आपका डेटा उनको बेचा हुआ है. सो चिल्ड्रन, इट कुड बी इवन योर डॉक्टर हु विल बी सेलिंग योर डेटा. So with the help of this data children that is gathered, what the individuals can do, they can get some suggestions and we can also get some solutions for the problem that we are encountering. So children, through this we just understood what are the 3 different uses of big data. The first one जो हमारे लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा आता है बच्चों लोग वेदर को फोरकास्टिंग करने के लिए, और तीसरा होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री. ओके, और क्या क्या फायदा होता है चिल्ड्रन, विल जस्ट कम अप with the next points in our coming lecture. Till then, thank you very much. Stay home, stay safe, keep in touch. Bye.